Hello student, continuation of lesson number 2 of your history from trade to territory standard 8. In previous lecture we have studied about how different European countries and even Britisher came to India for trading and how they conquered our India and started ruling over it. In previous lecture, we studied about Battle of Plassey, which was being counted as first victory of the company to won in India. Now in this lecture, we will study about Battle of Buxar. Even this battle have importance in the history. After this battle, British got the right of revenue. They directly became the Nawabs of Bengal. That is how they became Nawabs. And how company rule slowly expanded their power in India. Page number 14. After the defeat at Plassey, Siraj-ud-Dowla was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. As we have read in Battle of Plassey that Mir Jafar was bribed and he was told by Robert Clive that don't turn up in the battlefield and we will make you Nawab of Bengal. Siraj-ud-Dowla was killed and Mir Jafar was the next Nawab of Bengal. But the company was still unwilling to take over the responsibilities of administration. But company was not ready to take the administration. They were ready just to rule. Its prime objective was to expand trade. If this could be done without the conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over time. So their main objective to expand trade और साथ में अगर लोकल रूलर्स ही उनको सपोर्ट करते हैं तो उनको टेरिटरीज को कॉन्कर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो टेरिटरीज उनके अंडर आ जाएंगे. Soon the company discovered that this was rather difficult, but it wasn't so easy कि हर लोकल रूलर मान जाएगा ब्रिटिशर्स की बात. For even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them. और जो local Nawabs थे, even they were not ready to give privileges. आपको पता है औरंगजेब ने privilege दिया था trade without tax, यानी ड्यूटी फ्री करना था. तो मीर जाफर भी जब नवाब बने तो even he was not ready to give that privilege. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect of their subject. And बंगाल की वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट थी. अगर वो भी रेवेन्यू चला जाएगा तो उनकी बहुत बंगाल में प्रॉब्लम हुई. When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर जफर ने भी अपोज किया कि नहीं आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, तो कंपनी ने मीर जफर को हटा के उसकी जगह पे दूसरा नवाब खड़ा कर दिया, वो था मीर कासिम. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in battle fought at Buxar in 1764. तो जब मीर कासिम ने भी वही कंप्लेन किया कि टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तब कंपनी ने बैटल किया मीर कासिम के सामने और वो बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर इन द ईयर 1764. एंड ही वाज ड्रिवन आउट ऑफ द बंगाल. मीर कासिम डिफीट हो गया, उसको बंगाल से निकाल दे दिया गया, मीर जफर को वापस रीइंस्टॉल कर दिया. द नवाब हैड टू पे ₹500,000 एवरी मंथ. अब मीर कासिम को पेनल्टी भी देनी पड़ी, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी. व्हाई दे नीडेड मोर मनी? वॉर का खर्चा निकालने के लिए,
ट्रेड के डिमांड्स के लिए और उनके जो दूसरे अदर एक्सपेंसेस होते थे और साथ में उनको टेरिटरीज चाहिए थी जिस टेरिटरीज में से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। बाय द टाइम मीर जफर डाइड इन 1760 और मीर जफर नवाब तो था पर वो 1765 में मर गया। सो यहाँ पे एक नवाब, ब्रिटिशर ने कैसे नवाब्स को चेंज किया। सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनको मार दिया, उनके जगह पे मीर जफर को लाया। मीर जफर को हटा के मीर कासिम को लाया। मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर हुआ जिसमें उनको बंगाल से बाहर निकाल दिया। मीर जाफर को वापस लाया। मीर जाफर के मरने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब कोई नवाब ने डायरेक्ट बंगाल का रूल ब्रिटिशर के हाथ। Having failed to work with puppet nawabs, Robert Clive declared, "We must indeed become nawab ourselves." और तब रॉबर्ट क्लाइव ने डिसाइड किया कि हमें खुद नवाब बनना चाहिए और खुद ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहिए। तो इस तरह ब्रिटिशर ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना शुरू किया। Finally, in 1765, after the death of Mir Jafar, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of Provision of Bengal. दीवान, दीवानी राइट यानी कि वो जो ब्रिटिशर अपॉइंट हुआ नवाब उसके पास उतनी टेरिटरी का राइट मिल गया कि वहाँ पे जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है, रेवेन्यू ये एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी हर एक किंग के पास, यानी कि टैक्स, और वो सारा राइट अब ब्रिटिशर के पास आ गया। द दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल, और ये जो बंगाल का मेन इनकम था वो उनके हाथ में आ गया। विच सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम विच कंपनी थॉट। फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांडेड। उनका ट्रेड एक्सपांड हो चुका था, पर फिर भी most of goods in India they bought with gold and silver imported from Britain। पर फिर भी जितनी भी इंडिया में गुड्स वो परचेज कर रहे थे वो ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर आते थे उस ट्रांजैक्शन से वो करते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल टू इंडिया, क्योंकि उनके पास कोई गुड नहीं था इंडिया को सेल करने के लिए, और इसलिए उनको उनका गोल्ड और सिल्वर यूज करना था। The outflow of gold from Britain slowed after Battle of Plassey। ब्रिटेन से थोड़ा गोल्ड बैटल ऑफ प्लेसी के बाद कम आने लगा और उन्हें लगा कि दीवानी से जो भी इनकम वो अर्न कर रहे उससे शायद उनकी नीड्स फुलफिल होगी, पर वैसा भी नहीं। Now revenues from India could finance company expense। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ब्रिटेन से हम गोल्ड और सिल्वर मंगाएं, और क्यों हम एक ही टेरिटरी को रेवेन्यू कलेक्ट करें, धीरे धीरे हम सारी टेरिटरीज को कम कर सकते हैं, और इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज उनका रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसी रेवेन्यू कलेक्ट से हम अपनी नीड्स को पूरा करें। इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट करना और वही रेवेन्यू कलेक्शन से वही पैसे से वो इंडिया के गुड्स बाय करते थे चीप रेट पे और अदर यूरोपियन कंट्रीज में हाई रेट पे सेल करते थे। The revenue could be used to purchase cotton, silk textile in India, maintain company troops, कंपनी की आर्मी का मेंटेनेंस यानी खर्चा, meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta। तो ये सारी एक्सपेंस भी वो लोग करने लगे। So this way company officials became nabobs यानी कि नवाब। Each company servant began to vision of leaving Nawab। Page number 15। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and the vast sum of money as personal gift to the company। अब वो हर एक रूलर को फोर्स करने लगे कि वो उनको काफ़ी पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद इंडिया से काफ़ी वेल्थ अर्न किया है। He had came to Madras from England in 1743 at the age of 80। He left by 1767। तब तक उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर दिया।
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने उस पर एक सर्वे किया। Interestingly, when he was appointed the governor of Bengal in 1764, उनको एक काम दिया गया कि जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में करप्शन हो रहा है उसको हटाओ। पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद करप्शन किया था और 1774 में उन्हें सुसाइड कमिट कर दिया। तो जब भी ब्रिटिश ऑफिसर नवाब बने तो उन्होंने इनडायरेक्टली काफ़ी पैसा अलग तरीके से उनके पास इकट्ठा कर दिया। However, not all company officials succeed. हर एक सक्सीड नहीं हुआ था। Many died. काफ़ी अर्ली डेथ में इंडिया में मर गए ड्यू टू द डिजीज एंड द वॉर। Many of them came from the backgrounds of uppermost desire to earn enough from India. काफ़ी यहाँ पे रहे, करप्ट रहे ऑफिसर, डिसऑनेस्ट रहे, काफ़ी पैसा लेके इंग्लैंड चले भी गए और वहाँ पे अच्छी तरह से रहे। Those who managed to return with wealth, lead flashy lives and flaunted their riches. जिन्होंने यहाँ से पैसा इकट्ठा करके इंग्लैंड चले गए वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से रहते थे। वो ऑफिसर्स को वहाँ पे ब्रिटिश में नवाब्स बोला जाता था, हमारे इंडिया में नवाब बोला जाता था। It is an anglicized version of Indian word now. They were often seen as upstart and social climber in British society and were even made in the British history, even they were made fun of them. तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ब्रिटिश हिस्ट्री की दी गई है कि कैसे ब्रिटिश ऑफिसर जब नवाब बने तो उन्होंने कैसे इंडिया के काफ़ी रिसोर्सेज यानी पैसे को लेके इंग्लैंड में वो लोग चले गए थे।